बैठो। लॉ कब किया आपने? 2018 है 2018 में। 2018। तो आप अभी कहीं काम कर रहे हो? जी सर। क्या? एज ए जूनियर लॉ ऑफिसर फर्स्ट डिपार्टमेंट में। जूनियर लॉ ऑफिसर। अच्छा, ये पदनाम कब आया? सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इससे पहले कोई और नाम होता था? जी सर, पहले इसको लीगल असिस्टेंट बोलते थे। उसके बाद इसको जूनियर लॉ ऑफिसर में चेंज कर दिया था। हाँ, ये कब हुआ ये इसके बारे में जानकारी नहीं। ओके। कार्यवाहियां, आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश है। व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल प्रोसीडिंग? जुडिशियल प्रोसीडिंग वो प्रोसीडिंग होती है जिसमें अपने एविडेंस ओथ पे लिए जाते हैं, वो प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। तो ऐसी कौन से एग्जांपल बताओ? जैसे कि सर ट्रायल, इंक्वायरी, ये सब प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं। सीआरपीसी किसके साथ डील करता है? सीआरपीसी इंक्वायरी एंड ट्रायल बोथ के साथ डील करता है, और इन्वेस्टिगेशन भी। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन क्या चीज है? इन्वेस्टिगेशन वो सब प्रोसीडिंग जिसमें हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस करते हैं, वो सब प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन कहलाते हैं। और वो पुलिस के द्वारा या फिर कोई पर्सन जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ऑथराइज्ड हो, उसके द्वारा की जाती है। ये दो तरह की जो कार्रवाई होती है ना, वन इज नोन एज सिविल, सेकंड वन इज नोन एज क्रिमिनल। हाउ टू इनिशिएट एंड हु कैन इनिशिएट? सिविल को कौन प्रारंभ कर सकता है, क्रिमिनल को कौन प्रारंभ कर सकता है? सिविल में ऐसा है कि जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, मतलब जिसका कॉज ऑफ एक्शन है, वही स्टार्ट कर सकता है। क्रिमिनल में कोई भी पर्सन स्टार्ट कर सकता है। जनरली कुछ केस में सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पर्सन स्टार्ट कर सकते हैं, जनरली कोई भी स्टार्ट कर सकता है। What do you mean by cognizance? Cognizance is meant की एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड को कॉग्निजेंस बोलते हैं। आप उत्कर्ष के स्टूडेंट रहे हैं पहले? ऑनलाइन ऑफलाइन? बिल्कुल नहीं। ओके। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड बाय whom? By magistrate. Magistrate. Yeah, magistrate and judge. Judge denotes what? Sorry. Judge denotes what? Who is judge? In IPC, there is a definition of judge that any person. I am talking about the judge who is empowered by the law to take cognizance of the offence. Right now we are talking about the cognizance itself. There is no need to define what is meant by judge according to the Indian Penal Code. Proceed. Judge. Who is judge who is empowered by the law to take cognizance? Judge is a person who can make decision and empowered to take cognizance, and whose decision can send person to jail and उसको penalty भी मिल सकती है और damages. Where it has been provided that the judge is empowered by the law to take cognizance of the offence? Where? In section 190. 190. CRPC. 190 is talking about judge or a magistrate. 190 is talking about magistrate, but I am using judge in general sense. You are using judge in general sense. General sense. Okay. Magistrate can be said to be a judge and judge can be said to be a magistrate. No, in strictly speaking, they are not the same, but in general sense I am using the word judge. We are just confined up to legal sense only. According to you have to furnish your answer. Okay. What is meant by set off? So sir, I can't recall that. What is meant by counterclaim? Sorry sir. What is meant by suit? Suit is a proceeding that is started by submission of plaint to proper officer of the court. Proper officer of the court. What type of proceeding is it? Civil proceeding. What is meant by civil? Where the right of person is determined. What about liabilities and duties? It can also be determined in this. It can also be. Do you know anything about malicious prosecution? Yes. Define. Malicious prosecution is that कि अगर कोई person जिसको हम किस चीज के लिए prosecute करते हैं without any justified claim, तो उसको malicious prosecution बोलते हैं. Justified claim. Claim या फिर कुछ भी हम उसका complaint जो भी होती है. Claim या फिर कुछ भी. Claim, complaint, etc. Now you answer my question. What is meant by prosecution? Prosecution. Prosecution is where any person is prosecuted for committing any crime. Any crime.
Is there any provision as to civil prosecution? No. Are you sure? Okay. Okay. First of all, tell me, why do you want to be RJS? Because when I preparing for my मतलब जो मैं लॉ के दौरान मेरे को लगा कि दो ऑप्शन है मेरे पास, एक एडवोकेट और एक आर्टिस्ट। तो मैंने आर्टिस्ट में देखा कि उनके पास ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो दोनों साइड को देख के अपना डिसीजन देते हैं, और उनका जो एरिया ऑफ वो है वो वाइड होता है कि अभी जो पोस्टिंग है अभी वो सिविल में डील कर रहे हैं, थोड़ा कभी क्रिमिनल में डील करेंगे, वो एरिया भी चेंज होता रहता है। तो दे आर डाइवर्सिफाइड अपॉर्चुनिटी और डाइवर्सिफाइड चीज़ों को देखने को उनको मिलता है, तो मुझे वो एक्सेप्ट किया इस चीज़। आपने अपना मीडियम इंग्लिश बताया, लेकिन मैं देख रही हूँ आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है, या फिर मोर देन 50% आप हिंदी में ही बात कर रहे हैं, हिंदी में रिप्लाई कर रहे हैं, ऐसा कैसे? बिकॉज वो मेरा मीडियम है कि मैं लिखता उसमें बेटर हूँ, तो वही मेरा मीडियम है, लेकिन मैं बोल ज़्यादा अच्छे तरीके से हिंदी में सकता हूँ। लिखते हिंदी में अच्छा, लिखते इंग्लिश में अच्छा, बोलते हिंदी में अच्छा। चलिए, तो आप मुझे बताइए, लिमिटेशन लॉ जो है उसका क्या पर्पस है, क्या ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ये है कि कोई भी जो लिटिगेंट होता है या फिर कोई केस होता है, तो एक समय सीमा के अंदर उसको करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है तो जो क्लेम्स हैं वो डोरमेंट होते जाते हैं, जो सामने वाले के पास सबूत है वो भी खत्म होते जाएंगे। इसलिए एक टाइम फ्रेम किया गया है, किसी को कुछ हानि है, कोई दिक्कत है, तो वो समय सीमा में आके उस बात को रखे, इसलिए एक लिमिटेशन लॉ बताया गया है। क्या FIR को कभी डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है? जी बिल्कुल। कब? जब वो जैसे कि डाइंग डिक्लेरेशन की डेफिनेशन में बोला गया है कि वो डेथ के बारे में बताए, फिर ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू डेथ के बारे में बताए, अगर वो उस चीज के बारे में बता रही है तो उसको भी माना जा सकता है। What do you mean by inherent power of court? इनहेरेंट पावर्स ऐसी पावर होती हैं जो उस कोर्ट में इनहेरेंट होती है, मतलब उसको दिया नहीं जाता, वो सेविंग क्लॉज टाइप में होता है, मतलब जो पावर्स कहीं डिफाइन नहीं होती वो पावर मानी जाती है कि कोर्ट के पास होंगी। CRPC में कहाँ है? CRPC सेक्शन 482 में। किसके पास है? हाई कोर्ट के। सिविल प्रोसीजर कोड में कहाँ है? सेक्शन 151। तो वहाँ पे किसके पास है? वहाँ पर किसी भी सिविल कोर्ट के पास है। सभी सिविल कोर्ट्स के पास। आप अभी किस प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हैं? यूनियन ऑफिसर। क्या काम है आपके इसमें? वहाँ पर जो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट केस फाइल हुए हैं या फिर डिपार्टमेंट ने जो केस फाइल किए हैं उनकी लीगल मॉनिटरिंग करना। फॉरेस्ट और वन्य जीव से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं? फॉरेस्ट से है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, जो कि राजस्थान ने अडॉप्ट किया, राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के नाम से 1953, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952। 1972 में कौन सा है? सॉरी सर, वो मुझे अभी आप कितने टाइम से इस पे वर्क कर रहे हैं? सर अभी मैंने जस्ट 6 मंथ पहले ज्वाइन किया है, अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। इस 6 महीने के पीरियड में ऐसी कोई चीजें यदि आप आर्टिस्ट बनते हैं तो आपको बेनिफिट हो? जी, मैंने ये सीखा है कि कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, कैसे भी लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और दूसरा कि जो भी कोई मुझे केस आता है जिसमें मैं देखता हूँ कि स्मोकिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं, कौन से पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखते, तो एज ए RJS मुझे बहुत ध्यान में काम आने वाले हैं कि कौन से पॉइंट्स पे एक जजमेंट बनाया जाता है, कौन से पॉइंट को ध्यान रखा जाता है। आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है उसमें किन किन को रखा गया है? जी, कोई पार्लियामेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट and other bodies and local bodies within India or outside India continue with the permission of authority of government of India. अदर अथॉरिटीज में किनको शामिल करता है? So other authorities में I can recall तो एक RD शेट्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ वो फॉलो होती हैं तो वो कोई अथॉरिटी स्टेट कहला सकती है। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इटसेल्फ वो गवर्नमेंट अथॉरिटी है। जुडिशरी आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट में है क्या? हाँ, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में है तो वो मानी जाती है कि वो स्टेट है, अगर वो जुडिशियल वर्क कर रही है तो वो स्टेट में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है क्या? जैसा कि मैंने बोला, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं तो उसमें वो स्टेट माने जाएंगे, अगर वो जुडिशियल काम कर रहे हैं तो उसमें वो स्टेट नहीं माने जाएंगे। क्या लॉ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हाई कोर्ट का जज हो सकता है? हाई कोर्ट का जज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है? क्या कारण है? जी, उसमें एक क्लॉज है जो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें उनसे एक कोई पर्सन जो कि प्रेसिडेंट की नज़र में एमिनेंट जूरिस्ट हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अभी लेडी जज जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज बनी हो? Can't recall the name. Sorry, sir.
कोई मेल जज जो पहले इस तरह से बना हो? रोहिंटन नरीमन जी थे वो जो प्रैक्टिस करते थे और डायरेक्टली उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट दोनों जगह, पहले मुंबई हाई कोर्ट। आप ये बताइए, आर्टिकल 14 में जो क्लाउज 1 और 2 है, इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, दोनों में टेक्निकल डिफरेंस क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की हम जब किसी को ट्रीट करेंगे तब समान तरीके से ट्रीट करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि हम अगर किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो हम समान तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। रिजर्वेशन किसमें है? इक्वलिटी ऑफ लॉ, या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इक्वलिटी ऑफ लॉ में मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं इसको। एट्रोसिटी एक्ट में विवाद क्या हुआ? एट्रोसिटीज एक्ट में SC/ST वाले एक्ट की बात कर रहे हैं। उसमें ये था कि बेल को लेके बात थी कि जैसे उसमें एक एक्सप्रेस प्रोविजन है कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि ये एक इनहेरेंट चीज़ है, अब दे सकते हैं। तो उसको उसके बाद काफ़ी विवाद हुआ था। उसके बाद उस लॉ को फिर से अमेंड करके और एक्सप्रेस दिया गया कि किसी भी केस को ना होते हुए बेल नहीं मिलेगी। पहले वो फर्स्ट पार्ट के बेसिस पे एस्टैब्लिश किया, सेकंड पार्ट के बेसिस पे? अच्छा, डेफिनेशन ऑफ जस्टिस? सर ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, दिस वेरी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, हर किसी के लिए अलग अलग मीन करता है। मेरे लिए फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ जस्टिस कहलाता है। जैसे कि अगर कोई लॉ है तो उसका अगर फेयरली एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं तो वो एक जस्टिस का ही रूप है। न्याय की शर्त में किसको शामिल करोगे यदि आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य में से? सॉरी सर, न्याय की प्राइमरी कंडीशन में स्वतंत्रता, समानता, अधिकार और कर्तव्य, न्याय की स्थापना के लिए इनमें से सबसे पहले किसको प्रमुखता दोगे? सर इनमें से कोई भी चीज को हम छोड़ नहीं सकते। अगर ये किसी भी चीज को हमने छोड़ दिया तो वो न्याय कहलाएगा ही नहीं। न्याय के लिए सबकी चीजों की जरूरत है। किसी एक को चुनना हो? किसी एक को चुनना हो तो मैं समानता को पहले चुनूंगा। डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी क्या है? इक्वलिटी है कि जो इक्वल पोजीशन पे हैं, मतलब इक्वल सिचुएटेड है, उन सबको इक्वली ट्रीट करना विद इक्विटी। जैसे कि सर अगर मैं सबको इक्वली 1-1 लाख रुपए बांट रहा हूँ, तो अगर कोई गरीब है तो मैं उसको ज्यादा रुपए दे सकता हूँ क्योंकि वो गरीब है, और कोई अमीर है तो मैं उसको ऑब्वियसली 1 लाख से कम दे सकता हूँ। तो इक्वलिटी है कि मैं सबको 1 लाख रुपए दूंगा। इक्विटी है कि मेरे पास डिस्क्रिप्शन आता है कि मैं जो ज्यादा वंचित है तो मैं उसको थोड़ा एक्स्ट्रा हेल्प कर सकूँ। रिजर्वेशन है इक्वलिटी के अगेंस्ट है या उसका पूरा है? जी सर, उसका पूरा है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इट इज वन ऑफ द इंस्टांस ऑफ इक्वलिटी। रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको एक्सटेंड किया गया और 10% EWS रिजर्वेशन दिया गया, जबकि हमारे यहाँ इंदिरा साहनीवाद में पहले क्लियर कर दिया गया था ये सब। तो इंदिरा साहनीवाद जो था उसका जजमेंट क्या था, और 10% जो अभी इंक्रीज हुआ वो किस कारण से वैलिडेट है? इंदिरा साहनी जो बात था उस वक्त जब मंडल कमीशन के बाद अदर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया था, जो कि 50% से क्रॉस कर गया था। किसने दिया था? मंडल कमीशन के बाद, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करते हुए VP सिंह गवर्नमेंट ने। VP सिंह ने दिया EWS? हाँ सर, उस वक्त भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया का भी दिया था। उसके बाद उसको स्टेप डाउन कर दिया था इंदिरा साहनी। नरसिम्हा राव जी के द्वारा दिया गया। सॉरी सर, ये मेरे को थोड़ा